Good morning, students. Today we'll start our next chapter, that is human capital formation. Before discussing about human capital formation, we will discuss about the human capital. Okay, what actually human capital is, or why human beings are termed as resource or capital for the country or the nation. कि ह्यूमन बींग्स को हम अपनी कंट्री के लिए कैपिटल या फिर रिसोर्सेज क्यों मानते हैं, या कौन से ह्यूमन बींग्स रिसोर्स या फिर कैपिटल बन जाते हैं उस कंट्री के लिए. ओके, सो generally if we talk about the human capital or human resource, the person or the one who is responsible enough to use the available or the given resources in an optimum manner, or who avoids the wastage of resources, and the one who is well aware about the rights, duties and responsibilities in a country, that person is termed as human resource or human capital for the nation. Okay, generally वो person जिसको पता है कि मेरी राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ क्या है उस सोसाइटी की तरफ या उस कंट्री में रहते हुए, या फिर वो इतना सेंस है उसमें, इतनी समझ है कि वो अवेलेबल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करता है, ऑप्टिमम वे में यूज़ करता है. जनरली उस पर्सन को हम एक ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल मानते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, if a person knows that spitting around in a public or at a public place is a punishable offense, or if he or she breaks the rules or the laws, he can be imprisoned or fined. Okay, so that person is sensible enough. That means he understands what are the laws and the rules and what does they mean. ओके, उसे पता है कि जो भी एक्ट्स वो कर रहा है उन एक्ट्स की क्या रिजल्ट्स या उन एक्टिविटीज़ का क्या इम्पेक्ट जो है हो सकता है. ओके, एंड इफ़ मोर ओवर एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इफ़ ही और शी फॉलोज द रूल्स एंड लॉज, इन दैट केस द पर्सन विल बी कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन एसेट. ओके, क्योंकि उसमें इतनी समझ है और वो उनको फॉलो भी करता है उन रूल्स एंड लॉज को जो उसके लिए बनाए गए हैं. ओके, so basically human capital is related with the thought process. Okay, that means sense है, thought process है. Okay, he is rational, सोचता समझता है. Okay, and that is generally called as human capital. But if we talk about the human capital in the context of economics, so the human capital or human resource is directly related with the economic development or the growth of the country. That means the persons who are directly or indirectly contributing towards the development or growth of the country are termed as human capital. Okay, जब बात इकोनॉमिक्स में आती है ह्यूमन कैपिटल की, तब हम कहते हैं वो लोग ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स होते हैं जो कंट्री की डेवलपमेंट या ग्रोथ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं. Okay, so those who are contributing towards the growth and development of the country are termed as human capital. Okay, so the whole population of the country is divided into two parts. Okay, the one is assets, the other one is liability. That means some proportion of the population is termed as assets of the country and some proportion of the population is termed as liabilities. Okay, we all know that what is an asset and what is a liability. Okay, asset क्या होता है और liability क्या होती है हमें सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ. एसेट्स एनीथिंग विच प्रोड्यूस और विच कैन प्रोड्यूस द वैल्यू. ओके, कोई भी वो चीज़ जो वैल्यू प्रोड्यूस कर सकती है. ओके, और विच कैन प्रोड्यूस अ वैल्यूएबल थिंग, दैट इज एन एसेट. ओके, ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी इज समथिंग that creates a hurdle, or means which brings about a hurdle in the development or the growth process. That means generally अगर accounting terms में बोलें, so liability is the amount of money which is owed by someone to the other person. Okay, that means ये एक responsibility है किसी को कुछ पे करने के लिए. दैट मीन्स सिंपली और जनरल टर्म्स में बोलें, सो लाइबिलिटी इज द एक्ट विच रिड्यूसेस द इनकम और द वेल्थ ऑफ अ पर्सन और द नेशन. कोई भी वो एक्ट या वो पर्सन जो हमारी वेल्थ या इनकम को रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है. एंड एसेट्स विच क्रिएट्स the income or the wealth, as we have discussed, asset is anything which produces the
valuable things or which may produce any value in the future. Okay, so assets creates or generates the income and liabilities decreases or reduces the income and wealth. Okay, so अब हम population को assets और liabilities मान रहे हैं. अगर accounting terms से बाहर आ जाएं तो वो लोग जो country के लिए कुछ create करते हैं means that anything that has an economic value, the persons or those persons are termed as assets. वो persons जो इकोनॉमी के लिए कुछ क्रिएट करते हैं और जिसकी कोई मार्केट वैल्यू होती है, दैट मीन्स वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. ओके, कुछ प्रोड्यूस करते हैं जिनकी कोई मार्केट वैल्यू होती है, जिनको बेच के कमाया जा सकता है. ओके, वो पर्सनस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट मीन्स वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ओके, सो उन लोगों को हम एसेट्स मान लेंगे. एंड दोज हु आर नॉट producing anything or those who are not creating any opportunities to create wealth or income, those persons are termed as liabilities. वो लोग जो कुछ भी काम कर ही नहीं रहे हैं या फिर जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, अपनी नीड्स भी खुद फुलफिल नहीं कर सकते, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो लोग हमारे लिए या कंट्री के लिए लाइबिलिटी हो जाएंगे, क्योंकि वो कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ तो कर ही नहीं रहे हैं, वो अपनी नीड्स भी सेटिस्फाई करने में एबल नहीं है. ओके, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सो दोज हु आर नॉट अर्निंग और दोज हु आर नॉट वर्किंग, okay, those who are not doing any productive activities, so basically that means they are not earning anything. Okay, if they are not earning money, so they will not be able to fulfill their basic needs even. Okay, because we need money to fulfill our physiological or materialistic needs. ओके, हाँ, किसी भी पर्सन को अपनी मटेरियलिस्टिक नीड सेटिस्फाई करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है, और अगर वो पर्सन कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो मनी अर्न नहीं कर रहा होगा. ठीक है, तो अपनी मटेरियलिस्टिक या जो फिजियोलॉजिकल जो हमारी बेसिक नीड्स होती है वो हमारी मटेरियलिस्टिक या फिजियोलॉजिकल नीड्स ही होती हैं. ओके, तो वो फुलफिल नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि मनी नहीं है उसके पास. सो एंड फॉर सर्वाइवल इट इज़ द मैटर ऑफ फैक्ट दैट फॉर सर्वाइवल द पर्सन्स नीड टू फुलफिल देयर मटेरियलिस्टिक नीड्स. ओके, जो बेसिक नीड्स हैं या फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो उन्हें फुलफिल करनी ही करनी पड़ेंगी सर्वाइवल के लिए. ओके, ज़िंदा रहने के लिए. सो उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऑब्वियसली वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे. ओके, सो 2 पॉइंट्स आर देयर, या तो वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या फिर वो मनी अर्न तो नहीं कर रहे होंगे लेकिन कोई दूसरे तरीके से लाइक इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू वो मनी जनरेट कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल क्राइम्स हैं, ओके, थेफ्ट है, तो इन ये चीज़ें जो हैं कंट्री के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करती हैं. क्राइम्स जब कंट्री में इंक्रीज़ होंगे, ओके, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं इंक्रीज़ होंगी तो ऑब्वियसली कंट्री जो है बैकवर्ड फुट पे आ जाएगी. सो वो पर्सन्स जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे उनको हम लाइबिलिटीज़ मान लेंगे. एंड दोज हु आर परफॉर्मिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट, द पर्सन्स आर termed as assets. फॉर एग्जाम्पल द लेबरर्स और द वर्कर्स वर्किंग इन इंडस्ट्री और अ फैक्ट्री. किसी फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर भी एक एसेट माना जाएगा एक कंट्री के लिए. ओके, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि जीडीपी का हिस्सा बन जाएगी. एंड जीडीपी इज द ग्रोथ इंडिकेटर, दैट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट लेबरर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द कंट्री. सो पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक तो वो जो एसेट्स हैं कंट्री के लिए जो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड द अदर और द रेस्ट आर द लाइबिलिटीज़ जो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज इल, ओके, और बेड रिडन. एक पर्सन बीमार है या बेड रिडन है, वो कुछ काम नहीं कर पाता है तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, वो उनकी इनकम को, फैमिली इनकम को रिड्यूस कर रहा है ऑब्वियसली. ओके, और कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेट करें तो कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है तो वो लाइबिलिटी हो गया हमारे लिए. ओके, so moving towards the human capital. So if we discuss about the definition, we have to डिस्कस अबाउट सम पॉइंट्स कि ह्यूमन कैपिटल कौन है या किसको हम ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल मानेंगे. एक पर्सन जो स्किल्ड है, एक पर्सन जो एडुकेटेड है, एक पर्सन जो लाइक एक्सपर्ट है किसी चीज़ का, एक पर्सन जो फिजिकली एबल है, कैपेबल है. ओके, these persons are termed as, or the person who is having these
qualities is termed as the capital or the resource. Okay, एक person जो educated है, एक person जो skilled है, एक person जो expert है, एक person जो physically capable और able है. Okay, उस person को हम क्या मान लेंगे? Human capital. Okay, so इसको define करते हुए या meaning अगर हम लिख रहे हैं तो इन्हीं चार चीज़ों को या तीन चार चीज़ों को हम उसके meaning या definition में add कर सकते हैं simply. Okay, clear? The human capital क्या है? ह्यूमन कैपिटल को हम बोलेंगे द ह्यूमन बींग्स हु आर स्किल्ड, एबल, एजुकेटेड, एक्सपर्ट, टैलेंटेड. ओके, वट एवर यू कैन ऐड. ओके, जो भी कॉम्पोनेंट्स तुम ऐड कर सकते हैं, लाइक स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज है, टैलेंट है, एजुकेशन है, एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें ऐड करके हम उसकी डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे. ओके, ह्यूमन कैपिटल. सो व्हाट इज अ ह्यूमन कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? ओके, ह्यूमन कैपिटल क्या है या क्या समझते हैं हम ह्यूमन कैपिटल से? तो दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है वो कैपिटल. ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स को ही हमने रिसोर्स में कन्वर्ट किया है. तो वो ह्यूमन बीइंग्स जिनमें ये क्वालिटीज़ होंगी. ओके, कौन सी क्वालिटीज़? कि वो स्किल्ड है, वो एजुकेटेड है, वो एक्सपर्ट है, वो एबल है या फिजिकली कैपेबल है. ओके, उस ह्यूमन बीइंग को हम रिसोर्स मान लेंगे. ओके, सो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? सो ह्यूमन बीइंग्स हु आर स्किल्ड, एजुकेटेड, able and expert in doing anything are termed as human resource और human capital. okay, जिन लोगों में, जिन human beings में qualities हैं उनको हम human capital और human resource मान लेंगे, because उनमें skills हैं, वो expert हैं, वो physically capable भी हैं, वो educated भी हैं, तो obviously they are able to परफॉर्म एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी. वो कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करने में एबल हैं एंड उन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू वो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे. ओके, सो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ ए नेशन इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. ओके, स्किल्स और एबिलिटीज का जो स्टॉक है नेशन का, एक कंट्री का, ऑब्वियसली स्किल्स एंड एबिलिटीज ह्यूमन बींग्स में ही होती हैं. ओके, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें स्किल्स और एबिलिटीज नहीं होती हैं. फिजिकल कैपेबिलिटी या फिर जो स्किल्स हैं वो नहीं होंगी. स्किल्स उसी में होगी जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है, द वन हु इज रैशनल. ओके, वही स्किल्ड हो सकता है जो सीख सकता है. एंड फिजिकल कैपेबिलिटी, ओके, जिसमें मूवमेंट होगी, जिसमें लाइफ है, ओके, वही फिजिकली एबल हो सकता है. तो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं हो सकती. ओके, सो द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी, ओके, वो एक ह्यूमन बीइंग में ही होंगी. तो वो लोग जो स्किल्ड और एबल हैं उनको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं. ओके, या फिर द ह्यूमन बीइंग्स हु आर स्किल्ड, एबल, एजुकेटेड एंड एक्सपर्ट आर कोल्ड ह्यूमन कैपिटल. ओके, ये बेसिक सी चीज़ें याद रखिए, यही हमारी सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगी कि एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करें, उसे स्किल्स प्रोवाइड करके, उसे एजुकेटेड करके, उसे उसमें उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करके, ओके, उसे एक्सपर्ट बना के. क्लियर? इन तरीकों से जो है हम ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो बेटर है और इट इज़ बेटर टू keep remember these 4 or 5 points to further memorize the points of sources or the determinants of human capital formation. जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें कुछ सोर्सेस आएंगे कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग को या ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, तो बेसिकली यही 4-5 पॉइंट्स हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो now we relate the human capital with the assets, and those who are not human capital, that means those who don't have these elements, those who are not skilled, those who don't have the ability, those who are not educated, those who are not expert. Okay, obviously they will not be able to perform any productive activity. Okay, I'm not saying only those who are skilled and educated can perform any productive activity. Okay, unskilled persons can also perform the productive activities, but we have also included a term that is ability, the physical capability. Okay, clear? Along with the skills and education, we have also included the term ability or physical capability. That means a person should also be physically capable to perform any productive activity, along with the psychological abilities which are related with the skills and education एंड एक्सपर्टीज. ओके, एक पर्सन फिजिकली कैपेबल भी होना चाहिए कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी काम करने के लिए. ओके, या फिर ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन स्किल्ड ही हो. ओके,
That means we are saying or we are discussing human capital is the combination of these factors. अगर एक person physically capable तो है but skilled और educated नहीं है तो productive activity perform तो कर पाएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने initially discuss किया था कि वो person जो इतना sensible है कि अपने resources को optimum में use करेगा, ठीक है, तो means skilled और educated नहीं है, that means उसमें सोचने समझने की इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है या उसे नहीं पता, ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द लिमिटेड रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द कंट्री, सो वो वेस्ट कर सकता है उन रिसोर्सेज को, मतलब उनको ऑप्टिमम वे में यूज़ नहीं करेगा. ओके, दैट्स वाई द कॉम्बिनेशन of these factors or components are necessary to define the human capital. okay, एक human capital या human resource के लिए इनका combination ही ज़रूरी है. okay, सिर्फ productive activity perform करना ज़रूरी नहीं है या फिर sufficient नहीं है you can say, और adequate नहीं है, पर्याप्त नहीं है. okay, इन सभी कॉम्बिनेशन या इन सभी फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन एक पर्सन में होना ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज को भी हमने ऑप्टिमम वे में यूज़ करना है, उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी वो परफॉर्म करेगा, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ launched a scheme with the initiative that सबका साथ सबका विकास. ओके, लाइक दैट, जब सब साथ होंगे, सभी जो है मिलके काम करेंगे, या सभी का जब कंट्रीब्यूशन होगा तभी जो डेवलपमेंट है ग्रोथ हो सकती है. दैट मीन्स अगर हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूज़ करेंगे तभी सभी लोग उन रिसोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं. ओके, सो द पर्सन हु इज़ नॉट स्किल्ड और द पर्सन हु इज़ नॉट एजुकेटेड, okay, so might be the possibilities are there that the person is not aware about the rights and responsibilities or the duties. ओके, उसे अपनी ड्यूटीज या राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता. ओके, तो मे बी वो रिसोर्सेज को वेस्ट कर सकता है. प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो परफॉर्म करेगा बट वो रिसोर्सेज को वेस्ट कर सकता है क्योंकि उसे नहीं पता कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, या फिर अपनी ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता, तो ही माइट ब्रेक द लॉज और ब्रीच द रूल्स. ठीक है, वो रूल्स को तोड़ सकता है. ओके, सो कॉम्बिनेशन इन चीज़ों का होना ज़रूरी है. ओके, सो द पर्सन हु आर ह्यूमन कैपिटल आर टर्म्ड एज एसेट्स. जो लोग ह्यूमन कैपिटल हैं, दैट मीन्स those who have the combination of these components, skills, abilities, education and expertise. okay, वो लोग क्या होंगे, ह्यूमन कैपिटल, एंड उन्हीं लोगों को हम एसेट्स मान लेंगे. क्यों? क्योंकि वो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करके हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ओके, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ओके, and those who are not human capital, that means those who don't have the combination of these components, जिनके पास इनका combination नहीं है इन components का, okay, वो लोग human capital नहीं होंगे, so ultimately वो liabilities मान लिए जाएंगे क्योंकि वो country के लिए एक burden create करेंगे. Next is human capital formation. Human capital formation is basically the process of creating human capital or generating human capital. okay, ये एक process है जिसमें हम human capital generate करते हैं या create करते हैं. okay, so it is the process of acquiring and increasing the number of persons. okay, keep remember the process of acquiring and increasing the number of persons. okay, the number of persons who have the skill, education and experience, expertise. okay, that means out of the total population. okay, population को हमने दो parts में divide किया था, those who are assets and those who are liabilities. ओके, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमने कंसीडर किए थे. पूरी पॉपुलेशन को हमने डिवाइड किया है. ओके, दैट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स, द टोटल पॉपुलेशन इज कांस्टेंट. ओके, उसको हमने डिवाइड किया है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में. फॉर एग्जांपल 60% एसेट्स हैं एंड 40% लाइबिलिटीज़ हैं किसी कंट्री में. ओके, सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली सेज दैट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ, ओके, और द प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स, increasing the proportion of human assets in the total population. okay, population में human assets का proportion increase करना ही human capital है. okay, और assets कौन है, human assets कौन है, those who have skills, education, expertise and experience are human capital or assets. okay, so it is the process of acquiring and increasing. उन लोगों का नंबर पॉपुलेशन में इंक्रीज करना जिनके पास स्किल, एजुकेशन, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस है. दैट मीन्स
टोटल एसेट्स, ह्यूमन एसेट्स इंक्रीज करने हैं आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन में ह्यूमन एसेट्स इंक्रीज करने हैं. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल और जनरेटिंग ह्यूमन कैपिटल. ओके, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इनिशियली कि इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट है. ओके, सोशली भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी सोसाइटी को साफ रखने में, ठीक है, सेफ रखने में. क्लियर, अगर वो human capital है, assets हैं, that means if they are responsible citizens they will also contribute towards the social development. Okay, and economic development में तो कर ही रहे हैं contribute by performing the productive activities. Okay, so this is the human capital formation. Okay, process of acquiring and increasing the number of persons who have the skill, education, expertise and experience. Okay, and those who are able also. वो कंपोनेंट्स वेरी कर सकते हैं, तुम चारों इंक्लूड करो किसी डेफिनेशन या मीनिंग में, तीन इंक्लूड करो या दो करो, डजेंट मैटर. ओके, बट इट इज़ बेटर टू यूज ऑल द कंपोनेंट्स सो दैट you can easily memorize while defining the sources or explaining the sources, which we will discuss in the same lecture later on. So the next one is the difference between human capital, physical capital and financial capital. Okay, financial capital हम अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि जनरली हम कॉमर्स में कैपिटल मनी से ही रिलेट करते हैं कि कैपिटल का मतलब मनी है. दैट मीन्स एक बिजनेस में जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो उस बिजनेस की कैपिटल बन जाता है. ओके, सो दैट इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल. ओके, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. फिजिकल कैपिटल आर द रिसोर्सेज which are used in the production of goods, or you can say these are the produced means of production. For example, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मशीनरी हो सकता है, इनको हम फिजिकल कैपिटल मान के चलते हैं. these are the produced means of production. And financial resources or the financial capital is just the paper claims. That means the money which is used or which is being used in the business for the production purpose. Okay, for example जो भी पैसा, okay, चाहे मैंने वो बोरो किया है या फिर मेरी सेविंग्स हैं, ओके, लाइक जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं बिजनेस की, या फिर बोरो किया है डिबेंचर्स या शेयर्स के थ्रू या बैंक से लोन लिया है, दीज आर जस्ट पेपर क्लेम्स. ओके, वो पेपर क्लेम्स ही होते हैं, हमें उनको वापस करना होता है, ठीक है, या फिर हम रिसीव कर रहे होते हैं उनको. The next one is human capital. Okay, human capital is quite different from these physical capital and फाइनेंशियल कैपिटल. मीनिंग ही लिखना है कि मीनिंग हम डिफाइन कर ही चुके हैं. ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज इन अ ह्यूमन बीइंग. ओके, एक ह्यूमन बीइंग जो स्किल्ड और एबल है, ओके, वो ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा. ओके, तो सो बेसिक सा डिफरेंस है, बट कीप रिमेंबर जो हमारा फिजिकल कैपिटल है और फाइनेंशियल कैपिटल है, ओके, उसका बेस ह्यूमन कैपिटल ही है. दैट मीन्स ये जो फिजिकल कैपिटल है जिनको हमने डिफाइन किया, दीज आर द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, दैट मीन्स दीज आर द प्रोड्यूस्ड मीन्स. ओके, इनको प्रोड्यूस किया गया है फर्दर प्रोडक्शन के लिए. तो प्रोड्यूस किसने किया होगा? फॉर एग्जाम्पल मशीन है जो किसी भी बिजनेस में या किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, ओके, जो फर्दर गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो उस मशीन को भी तो किसी ने बनाया होगा. ओके, ऑब्वियसली उस ह्यूमन बीइंग ने, एक इंसान ने ही उसे बनाया होगा. सो जो फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल है, बिकॉज फाइनेंशियल कैपिटल जनरेट या क्रिएट भी ह्यूमन बीइंग ही करेगा. वो माइंड सेट या ब्रेन से ही या माइंड से ही उसने क्रिएट किया होगा, इंक्रीज की होगी अपनी वेल्थ को. ओके, सो वो पेपर क्लेम्स हैं या फाइनेंशियल कैपिटल है, बोरो किया है या सेव किया है, वो सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग ने ही की है. तो ये दोनों जो फिजिकल कैपिटल है और फाइनेंशियल कैपिटल है, ये डिपेंड करते हैं ह्यूमन कैपिटल के ऊपर. ओके, अगर ह्यूमन कैपिटल ना हो तो इन दोनों जो फाइनेंशियल कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल है, इनका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो क्रिएट ही नहीं हो पाएंगी, जनरेट ही नहीं हो पाएंगी. ओके, सो ह्यूमन कैपिटल इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, और यू कैन से the use of physical capital and financial capital depends on the human capital. Okay, इनका जो use है वो human capital के ऊपर depend करता है, इनको use human capital ही करेगी. Okay, मशीन है फैक्ट्री में लेकिन लेबर्स या वर्कर्स नहीं है, तो मशीन को चलाएगा कौन? क्लियर, तो मशीन तो पड़ी है लेकिन अकेली मशीन जो है प्रोडक्शन नहीं कर सकती है.
क्लियर। पैसा तो है लेकिन पैसे को यूज़ या खर्च करने वाला नहीं, मीन्स सोच समझ के कहाँ पे इन्वेस्ट, मीन्स फाइनेंशियल कैपिटल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही हमारी वेल्थ को इंक्रीज करेगा। मेरे पास पैसा तो है लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। ओके, कॉन्शियस डिसीजन या एक रैशनल डिसीजन मुझे लेना है उस पैसे को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करने का। ओके, so what is the better or the best investment opportunity for me that is being decided by a rational ह्यूमन बीइंग। ओके, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग ही एक रैशनल या ऑप्टिमम डिसीजन ले सकता है कि मुझे अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तभी वो वेल्थ इंक्रीज होगी, अदरवाइज वो पैसा डूब जाएगा। ओके, इसी तरीके से मशीन पड़ी है लेकिन वर्कर्स नहीं है तो मशीन अकेले या खुद ब खुद प्रोडक्शन नहीं करेगी। ओके, सो इन रिसोर्सेज को इनफैक्ट जो ह्यूमन फाइनेंशियल कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल है, इनको यूज़ करने के लिए ह्यूमन कैपिटल मस्ट है। Now we discuss about the determinants or the sources of human capital formation. That means human capital बनाई कैसे जाती है। ओके, कौन से सोर्सेज है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, कैसे फॉर्म करते हैं ह्यूमन कैपिटल को। क्लियर, एक ह्यूमन बीइंग, यू कैन से हाउ डज अ ह्यूमन बीइंग इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल। एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही 4-5 पॉइंट्स हमने जो इनिशियली डिस्कस किए थे कि एक पर्सन हु इज़ स्किल्ड, हु इज़ एजुकेटेड, हु इज़ एक्सपर्ट, हु इज़ एबल, ओके, हु इज़ एक्सपीरियंस्ड, दैट पर्सन इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल। ओके, सो हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करके, उसको स्किल्स प्रोवाइड करके, उसको एक्सपर्ट बना के, उसकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव, फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करके, ओके, उसे नॉलेज प्रोवाइड करके, ये सारी चीज़ें जो है उसमें इनकलकेट अगर की जाती हैं तो उसे ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, सो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए हमें उसे फैसिलिटीज़ देनी होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल, टू प्रोवाइड द एजुकेशनल फैसिलिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड, ओके, और शुड बी क्रिएटेड। ओके, उन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड या क्रिएट करने के लिए एक्सपेंडिचर करना होगा, खर्चा करना होगा, या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ओके, एजुकेशन जो है एक पर्सन के स्किल्स के लेवल को इन्हांस करती है, उसकी नो हाउ एबिलिटी को इम्प्रूव करती है। ओके, एक पर्सन को रैशनल बीइंग बनाती है। ओके, सो एजुकेशन इंक्रीजेज और इन्हांसेस द एबिलिटी ऑफ नो हाउ। ओके, दैट इज नो हाउ, मेनली हम इसको प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे किसी काम को करना है, दैट इज नो हाउ। ओके, सो एजुकेशन enhances the ability of know how a person। ओके, कैसे किसी काम को करना है, इस एबिलिटी को जो है, या किसी काम को समझने की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है एजुकेशन। ओके, या फिर हम कहें हमारे स्किल्स जो कि लाइक ट्रेनिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है। ओके, तो हमारी स्किल्स के लेवल को इम्प्रूव करता है। ओके, कुछ स्किल्स हम कहते हैं इनबोर्न होती हैं, बट उन स्किल्स को हम नरिश कर सकते हैं थ्रू लर्निंग। ओके, लर्न करके जो है, लर्निंग के थ्रू हम अपनी स्किल्स को नरिश कर सकते हैं। ओके, सो वो लर्निंग जो है वो कहाँ से आएगी, वो एजुकेशन से आएगी। फॉर एग्जांपल, एक जो सिंगर है, ठीक है, उसकी वोकल जो है वो इनबोर्न उसकी क्वालिटी है कि उसका जो वॉइस है या वोकल जो है उसकी अच्छी है, तो उसकी इनबोर्न क्वालिटी है। लेकिन वॉइस अच्छा होना या सिर्फ आवाज़ अच्छे होने से एक अच्छा सिंगर बनना ज़रूरी नहीं है। ओके, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओके, म्यूज़िक क्या है एक्चुअली, उसके बेसिक्स जो है वो सीखने पड़ेंगे। ओके, सो वो लर्न करके या प्रैक्टिस करके जो है अपनी जो नो हाउ है, ठीक है, या फिर अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकता है। ओके, सो रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू या लर्निंग के थ्रू ही वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। क्लियर, सो एजुकेशन जो है किसी पर्सन की स्किल्स को या स्किल सेट को इम्प्रूव करती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट for a country to spend more and more on the educational facilities so that its most of the or the larger population can be converted into human capital by improving their skill set। okay, सो एक कंट्री की गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के ऊपर, ताकि ज़्यादातर पॉपुलेशन को जो है स्किल्ड बनाया जा सके और वो स्किल सेट जो है कंट्री के बेनिफिट में ही यूज़ होंगी। The next one is expenditure on health. So another component we have discussed, that is the ability or the physical capability. That means if a person is physically able, okay, physically capable, physically fit, only then he or she can contribute into a productive activity, okay, or can perform a productive activity। okay, uh,
irrespective of the skill set. The health or the physical capability of the person is equally important. एक person skilled तो है लेकिन वो physically fit नहीं है या healthy नहीं है, तो वो उतना अच्छे से contribute नहीं कर पाएगा production में, या बिल्कुल भी नहीं contribute कर पाएगा production में, कोई productive activity perform नहीं कर पाएगा. Okay, for example like एक architect है या फिर एक construction engineer है. Okay, लेकिन वो फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है, मतलब वो अभी मींस फ्रीक्वेंटली वो बीमार रहता है, बेड रिडन है, वॉट जो भी है, ठीक है, तो उतना अच्छे से अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा, वो फ्रीक्वेंटली लीव्स पे रहेगा, छुट्टियां एब्सेंट रहेगा, वॉट इट इज़. लेकिन दैट मीन्स उसकी जो पोटेंशियल एबिलिटी है, ठीक है, या उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है, वो ग्रेजुअली या धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है. वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाता, रेगुलर होता, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाता, ठीक है, अगर वो हेल्दी होता है या फिजिकली फिट होता है. लेकिन अब वो बार बार एब्सेंट होता है, इसलिए उसका जो काम है वो अफेक्ट होता है, प्रोडक्शन कम हुआ है. ओके, सो हेल्दी या फिर फिजिकल फिटनेस भी एक पर्सन के लिए ज़रूरी है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए. सो गवर्नमेंट या कंट्री को जो है अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सो दैट द फिजिकल एबिलिटी ऑफ द पर्सन्स कैन बी इम्प्रूव्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक वर्कर जो है काम कर रहा है किसी मशीन पे और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, दैट मीन्स मशीन से हाथ कट जाता है या फिर समथिंग एल्स. ओके, एंड ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली मेडिकल फैसिलिटीज़ उसका जो है हाथ काटना पड़ जाता है. ओके, मीन्स अ वर्कर हु इज़ वर्किंग ऑन अ मशीन accident suddenly met with an accident on the machine and due to lack or improper medical facilities जो है उसको उसका जो हाथ है काटना पड़ गया. ऑब्वियसली उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो अफेक्ट हुई, कि जितना अच्छे से वो पहले काम कर पा रहा था अब वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका एक हाथ काट दिया गया है. ओके, सो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि इम्प्रॉपर या फिर टाइमली मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना होने की वजह से किसी की हेल्थ जो है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो गई. ओके, सो इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंट्री टू इम्प्रूव इट्स मेडिकल फैसिलिटीज सो दैट दे कैन मेंटेन द फिजिकल कैपेबिलिटीज़. ओके, फिजिकल कैपेबिलिटीज़ मेंटेन, अगर टाइमली उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ या अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपरली अवेलेबल हो जाती तो माइट भी उसका जो है हाथ नहीं काटना पड़ता. ओके, और वो कुछ टाइम बाद वापस से नॉर्मल हो जाता. ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ऑल्सो रिलेटेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स. ओके, पर्सन जो है मीन्स उसकी नो हाउ तो है, काम करना जानता है, ठीक है, ही इज स्किल्ड, बट we know that there is a frequent variations or frequent changes in the technology which are coming into the market nowadays. ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव या एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रही है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है. ओके, तो वर्कर्स जो स्किल्ड तो हैं लेकिन इस इम्प्रूव्ड और चेंजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी स्किल्स को बार बार जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. ओके, सो टाइम टू टाइम इंडस्ट्रीज जो है अपने वर्कर्स को क्या करती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही होती हैं, सो दैट देयर स्किल्स कैन बी अपडेटेड. ओके, उनकी स्किल्स को अपडेट किया जा सके विद द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी. ओके, सो ट्रेनिंग जो है वर्कर्स की स्किल्स को एक तरीके से इम्प्रूव या एनहांस करती हैं. ओके, अगर एक दैट दैट मीन्स उनकी जो स्पेशलाइजेशन कैपेबल एबिलिटी है उसको इंक्रीज करती हैं. सो द पर्सन हु इज ट्रेन्ड विल बी मोर प्रोडक्टिव देन द वन हु इज नॉट ट्रेन्ड. ओके, the next one is migration. Okay, migration is related with the some kind of unemployment that we have discussed in the agriculture sector, that is disguised unemployment. Means when the people are not uh, uh, productively engaged in any activity or not employed in any activity. Okay, not employed productively in any activity, so that is the case in which their earnings or income get affected or gets affected. Okay,
जब लोग जो है किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में प्रॉपरली इंगेज्ड नहीं हैं, काम तो कर रहे हैं, आई एम सेइंग द पीपल आर नॉट प्रॉपरली इंगेज्ड और नॉट फुली इंगेज्ड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, दैट मीन्स व्हेन द पीपल आर नॉट फुली यूटिलाइजिंग देयर स्किल्स, ओके, अपने स्किल्स या जो एबिलिटीज़ हैं उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस उसकी उनकी इनकम जो है अफेक्ट हो रही होगी। दैट इज़ द केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वी हैव डिस्कस्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दैट मीन्स लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, 2 लोगों की ज़रूरत है, 4 लोग किसी काम को कर रहे हैं, ओके, तो चारों कर तो रहे हैं लेकिन वो काम उतना ही होगा क्योंकि काम जॉब तो एक ही प्रोवाइड की गई थी, 20 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करनी है, तो 2 वर्कर्स could easily produce the 20 units, but now the 4 workers are being engaged, okay, तो 4 भी 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और 2 भी 20 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करेंगे, तो जो पर यूनिट इनकम है या पर यूनिट प्रोडक्शन है वो घट जाएगा, ओके, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट प्रोडक्शन 10 यूनिट्स आएगा, मतलब एक वर्कर ने 10 यूनिट प्रोड्यूस की, एंड जब 4 से डिवाइड करेंगे, जब 4 वर्कर्स ने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो सिंगल वर्कर इज बीइंग प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स, दैट मीन्स पर यूनिट प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, तो उनकी अर्निंग भी डिक्रीज हो जाएगी, ओके। So, when the disguised unemployment in any sector is being observed, so people generally migrate or move from that sector to another in the search of job, okay। जब किसी सेक्टर में disguised unemployment होती है या when the a particular sector is filled with the workers which are not necessary or not required over there, okay। जब ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, ठीक है, या फिर वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा हो जाते हैं किसी सेक्टर में, तो उस केस में जो है वर्कर्स या लोग जो है मूव करते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ या एक जोग्राफिकल लोकेशन से दूसरे जोग्राफिकल लोकेशन की तरफ, ओके। सो पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ जॉब, ओके। सो जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वहाँ पे उनको कुछ एक्सपेंडिचर या फिर खर्चे होते हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, या फिर जो है हम कह सकते हैं जो दूसरी जगह पे बसने का जो कॉस्ट उनको बेयर करने या रहने का जो कॉस्ट उनको बेयर करना पड़ेगा, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन, ओके। सो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन, ओके, ये उनकी कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन होगी, बट दैट कॉस्ट इज overshadowed by the benefits, okay। What are the benefits now they are receiving in the at the new place? The higher salaries, okay। वो जॉब की सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए थे क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी या फिर लोअर सैलरीज थी, उनके काम के बदले उनको कम पे किया जा रहा था। सो टू गेट द बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और इन द सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे मूव्ड टू अदर प्लेसेस, ओके। फॉर एग्जांपल रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो वर्कर्स हैं मूव करते हैं, माइग्रेट होते हैं, ओके। इन दैट केस वाई द पीपल और वाई पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज फ्रॉम रूरल एरियाज? ऑब्वियसली इन द सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ओके। उनको हायर सैलरीज अर्बन या हायर इनकम अर्बन एरियाज में मिलेंगी, ओके। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या वाइड ऑप्शंस उनको अर्बन एरियाज में मिलेंगे जो रूरल एरियाज में नहीं थे, ओके। सो माइग्रेशन के केस में क्या होता है? माइग्रेशन के केस में होता है कि जो स्किल सेट उन लोगों के पास है जो रूरल एरियाज में वेस्ट हो रहा था, दैट मीन्स यूटिलाइज नहीं हो रहा था, ऑब्वियसली आइडल पड़ा हुआ था तो वेस्ट ही हो रहा था, ओके। कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं वहाँ पे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी वहाँ पे, ओके। सो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। If they move from that place to the other place where the employment opportunities are available, in that case their skill set which are available in them, that can be utilized in the productive activities and the production will be increased, okay। जब वो उस जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जाएंगे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं तो उनका स्किल सेट अब यूज़ हो पाएगा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एंड दे विल ऑल्सो बी एबल टू गेट हायर इनकम, ओके। सो उनको बेनिफिट होगा और कंट्री को भी बेनिफिट होगा क्योंकि जो स्किल्स पहले आइडल पड़ी हुई थी, बिना यूज़ के पड़ी हुई थी, अब वो यूज़ हो रही हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ओके। The next one is expenditure on my information, okay। So it is very important that the time to time information or proper information or the right information should be provided or should be made available to the general public, so that they can use their skill set. And what kind of information should be made available? That is the information related to job markets, educational institutions, and some other information like the minimum wages and the salaries which are
बीइंग प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। ओके, इस तरह की कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उनके राइट्स के बारे में, उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन अगर लोगों को प्रोवाइड की जाए तो लोग जो है इजीली अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग सेंटर्स और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और द स्कीम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, फॉर एग्जांपल PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ओके, एक स्कीम है जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है यूथ को। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई ही नहीं जाएगी, ओके, if there is not dissemination of the information to the general public, then how could they be able to use or enhance their skill set? ओके, जब लोगों तक प्रोवाइड ही नहीं की गई, डिसैमिनेट ही नहीं की गई, ओके, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ओके, सो गवर्नमेंट को या कंट्री को ये भी चाहिए कि लोगों को जो है टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड, या फिर लोगों को अवेयर भी किया जाए कि आपके लिए क्या फैसिलिटीज़ या क्या स्कीम्स या क्या अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ओनली देन दे कुड बी एबल टू यूज़ देयर स्किल्स। ओके, सो ये फैक्टर्स थे जो ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट या जनरेट करने में हेल्प कर रहे थे।